हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 11 सोशल साइंस का, यानी सोशल साइंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी। यानी देखा जाए तो जैव विविधता काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ रहे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो यूपीएससी की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों पे जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चर्चा करने से पहले जो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, wildlife in India. There is the most important wildlife in India. You will study earlier in the lesson that due to the unique geographical position, India is rich in the wildlife. Wildlife of India is a great natural heritage. It is estimated that about the 80% of all now plant and animal species on the earth are found in India. Many plants synthesize a substance that are useful to the maintenance of health in a human and other animals. In descent is a human encouragement that pose a threat to India as a wildlife. In response to this, the system of national park, wildlife sanctuaries and protected area, first established in 1935, has substantially expanded through the Wildlife Protection Act 1972. Efforts are being made to be protect and preserve the biological diversity of our country under various programs. India has preserved a vast tract of the natural habitats, birds and plants in its 551 wildlife sanctuaries and 96 national parks and 25 wetland and 15 biosphere reserve spread almost all state of India. And besides this, there are 33 botanical garden and 275 zoological park, deer park, safari park, aquarium, etc. There is the most important for the exam view. On their competition also view. There are 551 wildlife sanctuary, 96 national park, 25 wetland and 15 biosphere reservation spread almost all the state of India. And 33 is a botanical garden and 275 zoological park. The important, and also deer park, safari park, aquarium, etc. To make a people aware conservation of threatened and endangered wildlife species in their respective area. In India, for the purpose of effective conservation of natural habitat of wildlife, special achievements like a Project Tiger 1973 and Project of Elephant 1992 has been to be launched, and these are very important as many species area at the brink of extinctions. However, none of this effort will be truly successfully unless all India recognize their role in the conserving of biodiversity. The next year, wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries, the main objective of the wildlife sanctuaries is the ensure maintenance of the viable population of wildlife, and there is a desired habits. And the wildlife sanctuaries in India are home to be around
2,000 different species of bird and 3,500 species of mammals, and nearly 30,000 different kind of insect and more than 15,000 variety of plants. And these sanctuaries as and the forest reserve are home to be several endangered species of animal and birds like Asiatic elephant, the Royal Bengal tiger, the snow leopards, and the Siberian crane. Many of the forest reserve and the wildlife sanctuaries of India are famous for a particular species of animals. For instance, the Kaziranga in Assam. Kaziranga in the Assam is known as for the Indian rhinoceros. Periyars in the Keras is famous for its elephant. India is also home to be several migratory animals and birds like olivers, rattles, sea turtles, Siberians, cranes, and flamingo. That is the most important here. The next year, national park. National park, this purpose of establishing a national park is to be a conserve there is a natural and historical object and their wildlife and to provide for the enjoyment of the same in such a manner. And by such a mean as will we leave them is unpaired for the enjoyment of the future generation. By 1960, India only had a 5 national park. In 1972, India is enacted the Wildlife Protection Act to be safeguard the habitats of the conservation relevant of species. The two main objectives of the act are there to be provide protection to the endangered species are listed in the act and to be provide support to be conservation area of country classified as a national park. Let's see the table. The most important rare species of animal found in the national park. There is the most important. Dachi Grams is Jammu and Kashmir. Hangul marks deer, the rare species of animal protected. And Corvette, Uttarakhand, the tiger, elephant, panther, deer. And Duhad Dawa is a UP. The elephants and tigers are protection here. And Kanha is a MP. There is a tiger and Barasingha. And Badipur is a Karnataka, tiger and Barasingha. The next year, the Bharatpur is Rajasthan. The different types of water wards is a protection. And Desert Park Rajasthan is a desert wolf and fox. And Gir is a Gujarat. There's a lion, panther, and cheetah. And Kaniranga Assam, the rhino and wild buffalo. And the Manasida Assam is elephant, rhino, and wild buffalo. Namzadaf is Arunachal Pradesh, is a protection here, tiger, goat, and wild buffalo. Sundarban is the West Bengal, that is the most important for Royal Bengal tiger. On your screen, there is the most important map show here, the Indian Wildlife Reserve. There is the most important. The dot here, Wildlife Sanctuary. The Wildlife Sanctuary on your screen, there is a maximum area. Rajaji, Corvez, Bansa, the means more important area I show here. And the next here, the triangle shape, a bird sanctuary. Bird sanctuary is found almost a 3 area only. There is a most important area, Bharatpura, and there is here Ranga, Thurthus, and there is other is next year. Madhuvalai. There is the most important only 3 side found of the bird sanctuary. And the national park almost a maximum. There's a Gir, Rajdevara, there's a Sivapuris, and the Kanha, Khilasi, and the Todova. They are the most important area found here. There are wildlife sanctuary on your screen. The next year, a wetland. A wetland is area of land where the soil is saturated with the moisture. You know that wetland, there is a soil is saturated with the moisture, either permanently or seasonally. There is a permanently or seasonally. Such areas may be also be converted in a particular completely by shallow is a pool of water. Shallow is a pool of water, and wetland include to the swamps, marshes, and bogs among other.
The water found in the wetland can be salty water, fresh water, and brackish. Most importantly, wetland also is serve as a natural waste water and purification system. Wetlands are considered as a biological the most diverse the all ecosystem. Plant life found in the wetland include mangrove, water lilies, and cattles as sedges and tamaracks and black spruces and cypress, gums, and many others here. The animal life include many different amphibian, reptiles, bird, insect, and mammals also here. The wetland performs two important functions in the relation to the climate change. They have a mitigation effect through their ability to sink carbon and absorption effect there is ability to store and regulate water. The Convention on Wetland of International Important Ramsar Convention is the international treaty as a designed to be address a global concern and regarding to the wetland loss of degradation. The primary purpose of their threat is to be list a wetland of international importance and to be promote there is a wish use with the ultimate goals of preserving their worlds. Wetlands and method include restricting access to be majority protections of wetland area as well as the educating the public to be combat the microexpressions that wetland or wasteland. On your skin, there is a most important wetland in India. There is a wetland, Astamadi is the Kerala. The area is 614. And Kalinga is mangrove, is the Odisha. Chilaka is a lake, is Odisha. East Kolkata wetland is the West Bengal. Colorius Lake is Andhra Pradesh. And Kotex Lake is a Manipur. And Point Calamars is the Tamil Nadu. And the next year, Pong Dam Lake is the Himachal Pradesh, Sambhar Lake is the Rajasthan, and Tosomoris is the Jammu and Kashmir. Upper Ganga Canal is Uttar Pradesh, Bimbam, Coal Wetland is the Kerala, and the Bulars Lake is the Jammu and Kashmir, Harikesh Lake is the Punjab, Bhoj Wetland is the Madhya Pradesh. They are most important wetland found in India. The next year, Biosphere Reserve. This is the most important Biosphere Reserve here. Biosphere Reserve are the multi-purpose protected area to preserve their genetical diversity in representative ecosystem. The Indian government has established 15 Biosphere Reserves, which protect a large area of natural habitat and then the National Park on Wildlife Sanctuary, and often include one or more national park and are the preserves along a buffer zone that are open to be some economical uses. Protection is there is granted not only to be a flora and fauna of the protected region, but also to be human communities is who inhabit this region. The main objectives to be established them are to be conserve our diversity and integrated of the life of plants, animals, and microorganisms. To promote a eco-friendly, sustainable life in this area and to promote ecological conservation, research, education, awareness, and training in the life such a area. That is the most important. Important on your screen there is a map. On your screen there is the most important Indian Biosphere Reserve. There are Biosphere Reserve here, Nanda Devi, this is important, and Panchamaharis, and the Achapakamar, and the Simhalapal, and Sundarban, Manas, Dibru, Sakhalwar. There is important of there is a biosphere reserves on India. There is a most important table biosphere reserve here. First of all, Nilgiri, Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka. And Gulf of Manners is Tamil Nadu. Sundarban is the West Bengal. Nanda Devi is Uttarakhand. And Dibang is the Arunachal Pradesh. Pachumarchi is the Madhya Pradesh, and Simlipal is Odisha. And Achaman Kamar and
Amarkantak, the Madhya Pradesh and Chhattisgarh. And the next year, Manas is the Assam and Kanchenjunga is the Sikkim. And Agasthamala is the Kerala and Great Nicobar is Andaman Nicobar Island. Korkerik is a Meghalaya and Dibru Siva Kovala is Assam. Rana of the Kacha is the Gujarat. The Kutch is Gujarat here, Rana of Kutch, Gujarat. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण भारत में वन जीवन। देखिए भारत में वन जीवन का अपना एक महत्व है। कहते हैं आप पहले ही पाठों में अध्ययन कर चुके हैं कि आपने अनोखी जो भौगोलिक स्थिति के कारण भारत में जो है वन्य जीवन समृद्ध है, क्योंकि भारत में जो है वन्य जीवन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय वन जीवन एक महान प्राकृतिक विरासत है और यह अनुमान है कि सभी ज्ञात पृथ्वी में पौधे और जानवरों की प्रजातियों में 80% भारत में ही पाए जाते हैं और कई पौधे संश्लेषित पदार्थ मानव और अन्य जानवरों में स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं। हाल के दशकों में मानव अतिक्रमण के कारण भारत के वन जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि देखा जाए तो हाल के दिन में जो अपने आप को लोगों ने मॉडलाइज कर लिया है, मॉडल जमाने में आ गए हैं। कहते हैं वन्य जीवन का उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से दोहन किया है और इसका जो है वन्य जीवन में बहुत ही बुरा असर पड़ा है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क, वन जीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों को विकसित किया गया है। कहते हैं बहुत सरकार के द्वारा जो है पार्क बनाए गए हैं जिसको संरक्षण के क्षेत्र में रखे गए हैं। वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वन जीवन का संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान का विस्तार किया गया है। हालांकि देखा जाए प्रावधान विस्तार किया गया, हालांकि विभिन्न कार्यक्रम के तहत हमारे देश में जैविक विविधता को संरक्षण बचाव के प्रयास भी काफ़ी किए जा रहे हैं। भारत में प्राकृतिक कहते निवास के विशाल क्षेत्र में संरक्षित पौधे और पक्षियों के लिए 551 वन जीवन अभयारण्य हैं और देखा जाए तो 96 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 25 झीलें हैं और 15 जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के लगभग सभी राज्यों में फैले हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ 33 जो है बोटेनिकल गार्डन है और 375 प्राणी उद्यान है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हिरन पार्क, सफारी पार्क, एक्वेरिया आदि बहुत पाए जाते हैं और क्षेत्रों में विलुप्त प्राय वन जीवन प्रजातियों के संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए भी बनाया गया है। कहते हैं सरकार के द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये प्रयास सफलता की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। कारण क्या है? सरकार तो हर संभव कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिश सरकार के द्वारा थोड़ी होती है। सरकार के विभाग में जो लगे हुए व्यक्ति वो करते हैं, लेकिन उनको क्या, उनको तो एक बार जॉब सरकारी मिल जाए, आराम से कुर्सी पे बैठना है। वन जीवन को कौन देखता है? कहते हैं आज देखा जाए तो बहुत से क्षेत्रों में वनों का जो है विनाश किया जा रहा है, जीव जंतुओं को मारा जा रहा है, कोई तरह के किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। सरकार ने बेशकली यहाँ पर आंकड़े अच्छे लगा दिए हैं कि 551 वन जीवन अभयारण्य हैं। कई बार यूपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे भी वहाँ पर बड़े है सुंदरता से जवाब देते हैं। लेकिन वो बच्चे जब आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, फिर कहते हैं चल वन जीवन को कौन देखता है, अभी तो हमें अच्छे से अपना रास्ता साफ करने हैं, पैसे के रास्ते बनाने हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं और जो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं बच्चे वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनको हर बात का ज्ञान होता है। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि जब वो पद प्राप्त कर लेते हैं तो कहाँ पर उनकी इंसानियत चली जाती है। कहते हैं इक्का दुक्का ही आईपीएस अफसरों का जो है पूरे देश में चर्चा होती है, बाकी देखा जाए तो हर साल इतने सारे बनते हैं और यही क्वेश्चनों से गुजरते हैं, यही प्रश्नों से गुजरते हैं और यही तकलीफ़ों से भी गुजरते हैं। फिर भी एक बार जब वो पद ग्रहण कर लेते हैं तो वो सिर्फ एक ही उनका सब कुछ बन जाता है, पैसा, सिर्फ पैसे। आखिर ऐसा क्यों? ये बहुत मैं हैरान होता हूँ कि विद्यार्थी लोग भी जब पढ़ाई करते हैं तो यही सब किताबों में लिखी गई बातें होती है, जब वन जीवन उसके संरक्षण उनको कैसे हम बचाएं। लेकिन ये विद्यार्थी जब अच्छे अच्छे पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो उनके जीवन में इनके संरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों?
कहते हैं ये लोग इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है कि ये वन जीवन की संरक्षण कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये बन जाते हैं फिर दोबारा क्यों नहीं इन जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कदम उठाते हैं? क्यों न कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जो लोग भी समझ जाएं कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो सिर्फ यही देखने में नज़र आया है कि सिर्फ कोई बन जाता है उसके बाद कभी भी वो छोटे जगहों पर नहीं जाता है। कभी जाता है कोई चीज़ को देखने के लिए। बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों को मैंने देखा है कि कोई क्षेत्र में कहीं जाते हैं तो उनके रास्ते बड़े साफ़ कर दिए जाते हैं, वहाँ पर गंदगी हटा दिए जाते हैं, पेड़ पौधों को साफ़ कर दिया जाता है। कहीं कोई मिनिस्टर जी को, कोई आईपीएस अफसर को कोई हल्का सा भी ऊंच नीच की वो ना आ जाए। तो ऐसा क्यों? क्या वो भली भांति नहीं जानते हैं? जब वो आईपीएस नहीं थे, जब वो मंत्री नहीं थे, तो वो भी उसी रास्तों से गुजरा करते थे और उनको भी दिखता था। लेकिन जैसे वो बड़े बन गए वैसे ही उनके लिए सब कुछ साफ़ कर दिया। क्या उन्होंने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि ये अभी अभी साफ़ किया गया है? आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? क्या ऐसे जंगल बना रखे थे यहाँ पर? मैं इस बात से सदैव हैरान रहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों कि जिस रास्ते से सभी बड़े बन जाते हैं उसी रास्तों को सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत से उदाहरण बनाए गए हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो है बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों में भी पूछे जाते हैं। कहते हैं 275 प्राणी उद्यान, हिरण पार्क, सफारी पार्क, एक्वेरियम आदि अपने संबंधित क्षेत्रों में विलुप्त प्राय वन जीव और प्रजातियों के संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए बनाया गया है। भारत में वन जीवन के प्राकृतिक विनाश के प्रभावी संरक्षण उद्देश्य के लिए विशेष परियोजना बनाया गया है। अब देखिए कहते हैं प्राकृतिक विनाश के प्रभावी संरक्षण के लिए 1993 में बनाया गया था बाघ परियोजना और 1992 में हाथी के लिए विशेष परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, यानी सभी जीव जंतु के लिए हर एक परियोजना तैयार की गई है, लेकिन सब के सब विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी हैं। ये जानना अति महत्वपूर्ण है कि कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, इसलिए इन प्रयासों की सफलता अभी संभव है जब हर भारतीय जैव विविधता संरक्षण में अपनी भूमिका अदा करे। यानी देखा जाए तो हर लोगों को जो है अपना जो है रूल रेगुलेशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात आता है वन्य जीवन जो है अभयारण्य, यानी वनस्पति अभयारण्य के मुख्य उद्देश्य वन जीवन के व्यवहार, आबादी और अपने वांछनीय वास के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए है। भारत वन जीवन अभयारण्य लगभग 2000 पक्षी स्तनधारियों के जो है 3500 प्रजाति और कीड़ों की लगभग 30,000 पौधे और 15,000 जो है किस्मों के घर हैं। आप समझ सकते हो कि पौधों के जितना 15,000 किस्में हैं और कीड़ों की लगभग 30,000 प्रजातियां हैं। इन अभयारण्यों के वन क्षेत्रों में एशियाई हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, साइबेरिया और क्रेन कई तरह के विलुप्त जानवरों और पक्षियों को प्रजातियों के विनाश करती है। भारत के वन्य जीवन अभयारण्य कई जानवरों की कुछ विशेष प्रजातियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए असम में काजीरंगा जो है भारतीय गेंडा के लिए जाना जाता है, जबकि केरल में पेरियार उसके हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में 551 वन जीवन अभयारण्य हैं और भारत में कई प्रवासी पशुओं और जो है एल्यूबियो, रेडोस, समुद्री कछुआ, साइबेरियंस, क्रेन और राजहंस की तरह पक्षियों का घर भी है। तो देखा जाए बहुत चीज़ों के लिए जो है भारत महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं और वन्य जीवन संरक्षण करने का है। सभी चीज़ों का जो है यही उद्देश्य होता है कि वन्य जीवन संरक्षण। अगर मान लीजिए कोई आईपीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको वन संरक्षण कोई जीव अगर विलुप्त के कगार पे है तो आप क्या संरक्षण करने के लिए कीजिएगा, तो आईपीएस के जो स्टूडेंट होगा बड़ी ही सफलतापूर्वक उसका आंसर देगा, बहुत ही चतुराई भरा आंसर देगा। लेकिन जैसे वो आईपीएस बन जाएगा वो जो आंसर दिया था उसका एक बात भी वो पूरा नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं संरक्षण करना शायद इन लोगों को है ही नहीं बात इनमें, तो कहाँ से कर पाएंगे संरक्षण। मैं तो कहता हूँ आप इतने बड़े अफसर हो, इतने अच्छे से कर सकते हो, तो क्यों नहीं आप लोग कहते वन जीवन के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठा रहे हो। कहते दिखावा नहीं करना है, कुछ करके देखिए, कुछ जानिए, तब जाने कि आपने पर्यावरण के लिए क्या किया और क्या पाया। कहते हैं इस बहुत ही नुकसान पहुँचाया गया है और 1970 में भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे जो 1972 में भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम विलुप्त प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। और इस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य थे।
विलुप्त प्रजातियों के अधिनियम को सुबंधित सुरक्षा प्रदान करना और राष्ट्रीय पार्क के रूप में वर्गीकृत देश के संरक्षण क्षेत्रों में कानूनी समर्थन प्रदान करना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कानूनी समर्थन तो मिलती है लेकिन इसको लागू नहीं किया जाता। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राष्ट्रीय पार्क में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से दुर्लभ प्रजाति है जो अब खत्म होने के कगार पे हैं। आप देखिए दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में देखिएगा तो हुंगुल मार्ग सीजन खत्म होने के कगार पे दुर्लभ हो चुके हैं। कावोट उत्तराखंड में जो है बाघ, हाथी, पैंथर, हिरन खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं। दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में जो है बाघ, हाथी खत्म होने के कगार पे हैं। कान्हा जो मध्य प्रदेश में है बाघ और बारहसिंघा के जो है दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात आता है बंदीपुर कर्नाटक, जिसमें बाघ बड़िघाल जो है संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आता है। वहीं परियार केरल जो है हाथी के लिए जाना जाता है। भरतपुर राजस्थान में जो है विभिन्न प्रकार के जलीय पक्षी के लिए जाना जाता है। मरुस्थलीय पार्क राजस्थान जो है मरुस्थलीय भेड़ और लोमड़ी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और गिर गुजरात जो है शेर, पैंथर, चीता के लिए जाना जाता है। और काचीरंगा असम जो है गेंडा, जंगली भैंस के लिए जाना जाता है। वही मानस देखें तो असम में हाथी, पेंडे और जंगली भैंसों के लिए आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात आता है मेदाफा जो अरुणाचल प्रदेश में है बाघ, गेंडा, जंगली भैंसों जो कि विलुप्त स्थान है। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल, जहां रॉयल बंगाल शेर जो है खतरे के कगार पे खड़ा हो रखा है, जिसका कोई आज जो संरक्षण करना इतना संभव नहीं रह गया है। यहाँ पर आपके समक्ष जो मैप आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में वन्य जीवन अभयारण्य काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। देखिए यहाँ पर जो डॉट दर्शाया गया है वन्य जीवन अभयारण्य दिखाया गया है और ये काफ़ी है। चाहे दादी गंजौत जम्मू कश्मीर साइड दिख रहा होगा, राजा जी है, उसका करोबोट है, बनवासा है, वही महामनद है, गोरुमारा है, मानस है, काजीरंगा है, चचुकोका है, पिराराम है, कब्बल है, सरीका, भरतपुर, रणथंभोर, ठीक है। वहीं बांदीपुर काफ़ी जगह दिखाया गया है। लेकिन पक्षी अभयारण्य जो है कुछ तीन ही क्षेत्र में दिख रहे होंगे। एक तो है रन गाती टूटू में और एक इधर साइड आपको दिख रहा होगा और एक जो है आपको भरतपुर के साइड है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल्स जो बनी हुई है राष्ट्रीय उद्यान के लिए है, जो कि कन्हा किसली है, कन्हौरी है, गिर है, दोबा है। तो काफ़ी क्षेत्र जो है सिलाबूपुरी भी है इसी के अंदर, आसिम पिपला भी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे जो है वन्य जीवन अभयारण्य क्षेत्र है जो हर एक जीव जंतु को संरक्षण प्रदान करने के लिए अग्रसर है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आर्द्रभूमियाँ। देखिए आर्द्रभूमि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आर्द्रभूमि जो है भूमि की जो है मिट्टी नमी के साथ या तो अस्थायी रूप से या ऋतुओं जो है संतृप्त के अनुसार एक क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र पानी के उथले तालाब द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से घिरा रहता है। कहते हैं झीलों, दलदल, एवोल और दूसरे जो है बीच में है शामिल होते हैं। झीलों में पाए जाने वाला खारा पानी ताज़ा पानी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण झील भी प्राकृतिक उपशिष्ट जल शोधन प्रणाली के रूप में सेवा करता है। और अर्ध जो है भूमियाँ जैविक रूप से पारिस्थितिक प्रणालियों के विविध रूपों में माना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पौधे का जीवन झीलों में पाए जाने वाला सदाबहार पानी लिली, कैक्टस में सेमरोटेक्स और कारेसबुर जो है प्राइसप्रेस और गोंद और कई अन्य शामिल हैं इसके अंतर्गत। और कहते हैं पशु जीवन में कई अलग अलग उभयचर जो है सरीसृप, पक्षी, कीड़े और स्तनधारी शामिल होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपना स्थान। वही बात करें हम आर्द्रभूमियाँ जलवायु परिवर्तन के संबंध में दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनके पास पानी के नियंत्रण करने और भंडारण करने की क्षमता के माध्यम से कार्बन और अनुकूल के प्रभाव को अवशोषित करने की क्षमता को प्रभाव का बचाव है। और आर्द्रभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व या रामसर समझौता और आर्द्रभूमियों पर समझौता जो है वैश्विक आर्द्रभूमि नुकसान और जो निम्नीकरण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए डिजाइन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और संधि का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व को जो है आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना है। संसार के आर्द्रभूमियों के संरक्षण के अंतिम लक्ष्य के साथ जो है बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना भी है। कहते विभिन्न विधियों द्वारा जो है आर्द्रभूमि क्षेत्रों को अधिकांश भाग को जो है उपयोग और जो है सीमित करना है और जनता को शिक्षित करके भ्रम दूर करना है जो भूमि बर्बाद भूमि नहीं है। तो ये बात तो है कि जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। जब तक जनता अच्छे से पढ़ेगी नहीं, समझेगी नहीं, इन चीज़ों का जो है संरक्षण करना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती है, हर चीज़ों के लिए अग्रसर नहीं हो सकती है। इसलिए जनता को इस बात को समझने की आवश्यकता रहेगी।
अब देखिए हमारे समक्ष आया भारत का अद्रभूमियाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अष्टामुंडी देखिए केरल में जो है 614 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसी तरह से भीतर कनिका मैंग्रोव जो है उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में ही है। और पूर्वी कोलकाता जो है अद्रभूमियाँ जो है पश्चिम बंगाल में है। वहीं कलरू जो है झील जो है आंध्र प्रदेश में है। और लोकतक झील जो है मणिपुर में है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं पर देखें तो पॉइंट कालीमर जो है तमिलनाडु में है। और ये जो 385 क्षेत्रफल इस पे फैला हुआ है। पॉइंट डैम झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। संभर झील जो है राजस्थान में है। और सोमोगिरी जो है जम्मू और कश्मीर में है। ऊपरी गंगा नहर जो है उत्तर प्रदेश में है। और बिनव कोल्स आर्द्रभूमि जो है केरल में है। जो है बुलेट झील जो है जम्मू और कश्मीर में है। हरेक झील जो है पंजाब में है। और भोज आर्द्रभूमि जो है मध्य प्रदेश में है, तो जो कि 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण सारे झील है जो काफ़ी क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आया है जैव आरक्षित क्षेत्र। कहते हैं जीव मंडल सुरक्षा बहुउद्देशीय आरक्षित क्षेत्रों के पारितंत्र प्रतिनिधित्व में आनुवांशिक विविधता को संरक्षित कर रहे हैं। भारत सरकार ने 15 जो है जीव मंडल सुरक्षा स्थापित की है, जो कि एक बड़े प्राकृतिक निवास स्थान है। एक राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीवन अभयारण्य से और प्रायः एक या एक से अधिक राष्ट्रीय पार्क और या अनाथ क्षेत्र हैं, और वे कुछ आर्थिक उपयोग के लिए खुले हुए रहते हैं। संरक्षण न केवल आरक्षित क्षेत्र की वनस्पतियों और जानवरों के लिए प्रदान करता है, बल्कि यह भी मानव समुदाय के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि इन क्षेत्रों में रहते हैं और उनके अनुसार जीवन बिताते हैं। इन्होंने स्थापित करने के उद्देश्य भी होते हैं। कहते पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के जीवन की विविधता और अखंडता संरक्षित होती है। कहते हैं क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए और पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, शिक्षा, जागरूकता और ऐसे क्षेत्रों में जीवन जीने का जो है प्रशिक्षण भी दी गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत मैप। अब यहाँ पर आपके समक्ष जो मैप आया आप देख सकते हो कि भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र, तो नदा देवी हो गया, पंचमंडी हो गया, अचनाकमार हो गया, सुंदरबन हो गया, सिमलीपल हो गया, मानस हो गया, डिब्रू, काफ़ी क्षेत्र इंपॉर्टेंट है जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैप के अंतर्गत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम यही बात करते हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ नाम दिया गया है और यहाँ पर राज्य दिया गया है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है नीलगिरी। नीलगिरी जो है तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में है। नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। वही मीनार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में है। वहीं सुंदरबन देखें तो पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात बात करें तो पंचमंडी है, मध्य प्रदेश में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही सिम्पलीपल जो देखें जो उड़ीसा में है। और देखिए अचनाकमार जो है अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं मानस देखें तो असम में है। कचजंगा जो है सिक्किम में है। अगस्थमाला जो है केरल में है। और ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। वही नोकरेक जो है मेघालय में है। और डिब्रू सिलोबा जो है असम में है। वहीं कच्छ का रण की बात करें तो ये कच्छ का रण जो है गुजरात में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की ओर दर्शा रहा है, जो कि बहुत काफ़ी ज़रूर है एग्ज़ाम व्यू से। तो आप इसको अच्छे से कीजिए, समझिए और अच्छे से जो है अंक प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आपका भी जो है एक फ़र्ज़ बन जाता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, कहते हैं शेयर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो विचार आपने ग्रहण किया है वो विचार दूसरों तक भी मिले, दूसरों को भी प्राप्त हो। क्योंकि त्रिपाण संग्रह इतना विस्तृत नहीं है और ये आप बना सकते हो अपने शेयर के एक बटन दबा के। ठीक है, और जितना हो सके इसको शेयर कर कीजिए। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि जब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आने वाला टॉपिक भी आपको लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बहुत से टॉपिक मिलेंगे जो कि इसके प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। यहाँ पर सारे सिलेबस जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर को जो है अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करके सेव कीजिए।